हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किड्स लर्निंग क्लासरूम स्टाइल। मैं शिखा और आप सबको मेरा जय श्री श्याम। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे साथ साथ अपने साइंस के एयर चैप्टर के नोट्स अभी तक कंप्लीट कर लिए होंगे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द अनदर सेशन एंड द सब्जेक्ट इज साइंस। द टॉपिक इज air. What all we have covered till now? So in this chapter air we have covered why is air classified as matter. We had discussed what is matter, molecule, then atom, then the three states of matter: solid, liquid and gases. Then we had covered the properties of air, and what are the four properties of air we discussed. So that is, air fills space, air has weight, air occupies space, and hot air expand. And then we had also discussed what is air. So air is invisible, colorless, odorless. It exerts pressure due to its weight, which decreases with altitude. And now what we had started in the last video at the end was, what does air contain? So the air is a mixture of water vapor, smoke, dust, germs and gases. And we had discussed what is water vapor. So water vapor is what? Water vapor is simply water in what? In gaseous form, in its gas form. It is an invisible gas. And how it is produced? It is produced when liquid water turns into a gas, or when the water boils or evaporate. And we had discussed few examples of it. If we would have that, we can relate it to a day-to-day life. The first one is, when we dry clothes, what happens? The air in the dry clothes get evaporated due to heat that is produced by the sun. So today we'll understand what is smoke and from where do the smoke comes. So smoke, the धुआं जिसे हम कहते हैं, वो कहाँ से आता है? वो that comes from the vehicles, from factories, from the crackers that we burn, then from burning of the waste materials, from burning the crops, the fields. So all these things, they lead to smoke. And what happens? Breathing in this smoke is not good for our health. So that's why it's always and always say that we should not burn more crackers. The vehicles that we use, we should start moving to electric vehicles. We should adapt to more resources, changing our resources of energy, which is more in the form of reusable. Yes, so that all these smokes that contributes to the air gets reduced and we can breathe clean and fresh and pure air. So let's see what I have written. Smoke from vehicles, factories, crackers, etc. releases harmful gases in the air, and breathing in smoke causes harm to our body. Then what is dust? So again, dust is basically the small particles that we can feel when this storm blowing, when there is too much of wind blowing in the form of storm. That time we would have noticed that small salt particles get stick to a hand, at times to our faces. So where from? So what are those? So those are dust. And from where do they come? So they come from the construction sites. At times, if there is any open field where there is no trees, no plants grown, so the loose soil that is there, वो उड़ती है हवा पे. जो धूल होती है वो वहाँ पे से जो धूल रहती है, जो सैंड पार्टिकल्स रहते हैं, वो उड़ते हैं, जिसे हम सॉइल इरोजन भी कहते हैं. और ये सारी चीजें मिला करके क्या बनाती हैं? दे कॉन्ट्रीब्यूट टू डस्ट, और इसी से डस्ट या फिर धूल उड़ता है. Yes, so air becomes dusty primarily through suspension of small solid particles like wind-driven soil erosion, volcanic eruptions, constructions and vehicle traffic. और जब कभी माय डियर स्टूडेंट, अगर हम देखेंगे कोई भी जो भी रोड्स पे ये
डस्ट पार्टिकल, जो सैंड पार्टिकल्स रहते हैं, जब वहाँ से जो गाड़ियाँ रहती हैं वो जब वहाँ से बहुत स्पीड से निकलती हैं तो वहाँ क्या रहता है, वो पूरा जो धूल रहता है वो वहाँ से उड़ता है। सो वो सारी डस्ट पार्टिकल्स रहती हैं जो जाके कहाँ मिक्स होती हैं, वो हमारे एयर में जा कर के मिक्स हो जाती हैं। देन व्हाट डज आवर एयर कंटेन्स फर्दर? सो आवर एयर कंटेन्स जर्म्स। तो जर्म्स क्या है? दे आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और वो क्या करती है? दे मेक अस इल। और जर्म्स जो रहती हैं दे ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और इसकी वजह से अगर कई बार हमने नोटिस किया होगा तो हमारे फैमिली में भी बहुत जन कहते हैं दैट वेन एवर वी स्नीज और वेन एवर वी कफ, we should always cover our mouth so that the germs does not gets mixed with the air and gets transmitted to another person. Yes, so therefore our air contains even germs, and from where they arise is what I have just explained you. Let's see what I have written. Air also contains germs. Germs are very small living things or microorganisms that make us ill. Germs from an infected person gets mixed with the air when he or she sneezes. So we should always cover our mouth when we cough or sneeze. And our air also has gases. So our air contains basically three main and 1% other mixed gases. So what are those? So those are nitrogen, which is too much, जो बहुत ज़्यादा है, abundant मतलब बहुत ज़्यादा है. Then we have 21% as oxygen. Then 1% we have carbon dioxide and other gases like argon, carbon dioxide and other gases. So this is the mixture. So these are the structure of in what percentage our air contains gases. And do you know, my dear students, that since the air that we are breathing on a day-to-day basis, on a day-to-day life, is not at all pure. This air is a contamination or a mixes of this dust, of this smoke, of germs, and therefore people at times fall sick. So therefore we should always adapt for look for an alternative wherein the pollution in the air gets reduced. And we'll discuss about air pollution in the coming sessions, which is a part of this particular topic. So don't skip any videos, and in case you have still not subscribed my channel, do subscribe it. Yes, so dust, smoke, germs present in air makes it dirty, and inhaling impure air makes us fall ill. Yes, because when we will inhale the air which is डस्ट जा रहा है, स्मोक जा रहा है, तो उससे क्या होगा? हमें ब्रीदिंग में इश्यूज आएंगी विच मीन्स दैट हमें कुछ ना कुछ रेस्पिरेटरी परेशानियां रहेंगी. कुछ कई बार बहुतों को आजकल अगर आप देखोगे तो एस्थमा रहता है, स्पेशली जब ये विंटर सीजन्स आते हैं. तो देयर आर फ्यू स्टेट्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मॉग रहता है, बहुत ज़्यादा स्मोक रहता है, वेर पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू ब्रीद. तो और उस टाइम पे जो स्मोक रहते हैं ये बेसिकली क्या रहते हैं कि जो एयर है, सिंस उसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है हमें वो स्मोक है या फॉग है वो फील होता है. एंड द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज that people faces the challenge is to breathe, because उसमें उस टाइम इतना ज़्यादा the things feel, you don't get the feel of the fresh air, you find it difficult to breathe because वो पूरा air क्या है, contaminated है, full of dust है, full of smoke है. Now we'll understand what are the uses of air. हमें air किस किस चीज़ों में यूज आती हैं. आप बताइए, आपको डे टू डे जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, आपको कहाँ कहाँ लगता है कि जो एयर है वहाँ पे उसका नीड रहता है. तो what are the few things wherein that जो आपको याद आता है कि हाँ यहाँ पे एयर का यूज रहता है. Yes, कुछ पॉइंट्स तो आपके माइंड में ज़रूर आया होगा. चलिए करते हैं उसे और सॉर्ट. सो हियर इज अ पिक्चर जहाँ पे एयर इज यूज फॉर डिफरेंट थिंग्स. सो देयर प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर टू लिव. क्यों? बिकॉज एनिमल्स क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं. और प्लांट को क्यों? बिकॉज जब वो खाना बनाते हैं
तो उन्हें उस पे एयर की ज़रूरत रहती है. वी ह्यूमंस वी नीड एयर टू ब्रीथ. बर्ड्स दे नीड एयर टू फ्लाई. देन वी नीड द बलून्स. We fill air in balloons, footballs, cycle tires, etc. We need air for burning, and we need air to move things like helicopter, kite, sailboat, windmill, etc. So windmill we'll get to know. So वो basically क्या रहता है, वो इस तरीके का एक विंड एनर्जी से जनरेट किया हुआ एक सोर्स है जो कुछ इस तरीके से रहता है. अगर आपने कहीं पे नोटिस किया होगा, कुछ इस तरीके से, और जिससे क्या रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. ठीक है, ये इस तरह से रहता है. बट इसको चलने के लिए क्या चाहिए होता है, वी नीड एयर. और ये सारी चीज़ें हम अभी क्यों ज़्यादा यूज़ करते हैं, सो दैट जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं या फिर जो रिसोर्सेज हमारे इन्वायरमेंट को ज़्यादा ख़राब नहीं करे, हमें सस्टेनेबल रिसोर्सेज की तरफ मूव कर रहे हैं. सो विंडमिल उनमें से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, वाटर सप्लाई जनरेशन में बहुत हेल्प मिलता है. सो ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड्स एयर टू ब्रीथ. एयर कंटेन्स गैसेज सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी ब्रीदिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. सो ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर व्हाट, ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग. एंड प्लांट नीड्स व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड. और हमने ये चीज़ें अपने जब हम साइंस की चैप्टर करे तब हमने प्लांट की जब चैप्टर करे तब हमने ये डिस्कस की थी. एयर हेल्प्स क्लोथ ड्राई फास्टर. एयर इज नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ बर्निंग. इफ देयर वॉज नो एयर, अगर एयर ही नहीं होता तब वी वुड नॉट बी एबल टू बर्न एनी थिंग. और एयर कैन मेक थिंग्स मूव, जैसे कि birds fly with the help of air. Air makes kites and parachutes also fly. Air makes the blades of the windmill move. Winds can be used to produce electricity using windmill. Also water can be drawn from wells using windmill. So मैंने आपको जैसे कि दिखाया था windmill क्या रहता है, वो एक तरह का फैन रहता है which is very huge. बट फॉर दैट विंड का जो व्हील्स है, जो उसके फैंस है, उसको मूव करने के लिए क्या चाहिए, इट नीड्स एयर, इट नीड्स विंड. और जब कोई भी चीज़ को अगर हम बर्न करते हैं तो उसमें हमें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत रहती है. और जो ऑक्सीजन हमें कहाँ मिलती है, एयर में मौजूद रहती है. 21% एयर में जो गैस रहता है वो ऑक्सीजन रहता है. और बर्निंग के लिए जो ऑक्सीजन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. अगर ऑक्सीजन का ही सप्लाई नहीं रहेगा तो जो कुछ भी चीज़ अगर हम बर्न कर रहे हैं तो वो नहीं बर्न हो पाएगी. इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. जब हम छोटे थे तो किया करते थे, एनी टाइम विथ इन योर फ्रंट ऑफ योर फैमिली, या कभी भी ऐसे आप लोग को स्कूल्स में भी करवाया जाए तब भी आप नोटिस कीजिएगा कि सपोज वी ब्लो 2 कैंडल्स, और एक कैंडल को हम ओपनली बर्न करें. एक कैंडल को जैसे ही हमने उस पर फायर लिट किया, उस सेकंड कैंडल को ऊपर में आप एक जार से कवर कर दीजिए, जो जार कंप्लीटली बंद है. तो उससे अगर आप नोटिस करेंगे कि जो दूसरा कैंडल जिसको आपने कवर किया है वो बंद हो जाएगा, उसमें फायर नहीं जलेगा. एंड द रीजन बीइंग इज कि कुछ भी चीज़ को बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए. और जैसे ही हमने वो जार को उस पर डाल दिया तो जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो बंद हो जाता है. तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जो स्कूल्स में करवाए जाते हैं. मुझे मेरे स्कूल में करवाया गया था, तो इसीलिए मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर की है. यस, अब वील नो कि हाउ डू वी ब्रीद. वैसे तो मैंने ब्रीदिंग का, एनिमल्स और प्लांट्स की ब्रीदिंग का तो हमने डिस्कस किया है. वो ह्यूमन बींग्स विल जस्ट क्विकली इन वेरी ब्रीफ, बहुत छोटे तरीके से हम इसे समझेंगे. सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीद. लिविंग थिंग्स वुड नॉट बी एबल टू लिव विदाउट एयर, बिकॉज हमें क्या चाहिए, एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन रहता है. इसकी वजह से we have special organs for breathing, और उसे हम क्या कहें, that is lungs. Humans breathe through their nose. हम अपने nose के थ्रू, हाँ, the organ is nose. Humans breathe through their nose. The air goes into the lungs through the nose.
Land animals like cats, dogs, horses, zebras also have lungs for breathing. और इंसेक्ट्स कैसे ब्रीथ करते हैं, तो कुछ कुछ इंसेक्ट्स लाइक ग्रास हॉपर जो रहते हैं, दे ब्रीथ थ्रू द टाइनी पोर्स जिन्हें हम स्पाइरिकल्स कहते हैं ऑन द साइड्स ऑफ देयर बॉडीज. एक्वेटिक एनिमल जो रहते हैं, हाउ डू दे ब्रीथ, दे ब्रीथ थ्रू स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड गिल्स. गिल्स हेल्प्स देम इन oxygen dissolved in water. Plants breathe through the tiny pores present on underside of leaves called stomata. और ये हमने अपने plants के चैप्टर में डिस्कस भी किया था. Yes? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम यहीं तक रखेंगे. अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दी है, जाके ज़रूर देखिएगा, उनके नोट्स बनाइएगा और ज़रूर एक बार रिवाइज कीजिएगा. इससे जो भी चीज़ें मैं लिंक करती हूँ अपने प्रीवियस चैप्टर से, यू विल फाइंड इट ईजी टू लिंक इट एंड टू अंडरस्टैंड इट. आप हमेशा मेरे साथ, मेरे क्लास में मेरे साथ ही चलेंगे, इवन दो यू आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट. बट इस तरीके से भी अगर हम पढ़ाई करेंगे, एंड आई माई वीडियो है जनरली ऑफ 20 मिनट्स, तो उससे हर दिन 20-20 मिनट या हाफ एन आवर अगर आप साइंस पढ़ेंगे, तो जो भी आपको उसके बाद इतना ज़्यादा साइंस को ना प्रिपेयर करने के लिए और उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं रहेगी. सो स्पेंडिंग 20 minutes on my video and 20 minutes on a self study of total 40 minutes will make you a master in your science subject. Do subscribe my video, like, share with your friends and families. We'll meet with another learning video. तब तक के लिए आप सबको bye bye.